Hello students, yesterday I explained you the chapter 2 our earth till the shape of the earth. Today I am going to start from that only the shape of the earth. Yesterday I had told you that previous people believe that the earth is flat or square in shape and they do not go far away long distance because they are afraid of that. If they go travel far away distance, they will fall down. So, but as the times are crossed, people started traveling further to the sea by the sea in search of new lands. But further, when the times are passed, the people started traveling in search of land with the help of the sea by crossing the sea, and then they realized that the earth was round, it was not flat. They realized, they come to know that the earth was round, is not flat, and they will not be get fall down from the earth. By this the people have to know that the earth is spherical in shape. However, pictures of the earth taken from space by satellites now prove that the earth is actually shaped like an orange. But when the pictures are taken from space by satellites, then we are able to know the perfect shape of the earth, and with the help of satellite it is proved that actually the shape of the earth is just look like an orange. It's not a round. It just look like an orange rather than a sphere. It just look like an orange. It is slightly flat at the top and the bottom. जो आपका अर्थ है, जब सैटेलाइट स्पेस में सैटेलाइट से इसकी एक फ़ोटो निकाली गई तब उससे पता चला, प्रूव हुआ कि हकीकत में अर्थ जो है एकदम गोल नहीं है, वो ऑरेंज संतरे की जैसे है, जो कि ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है और नीचे से भी थोड़ा सा फ्लैट है और बीच में बल्ज एट द सेंटर, बीच से थोड़ा फुला हुआ है. इट जस्ट लुक लाइक एन orange. Now at present time all of them clear that the earth is not a flat or square, it is just look like an orange which is slightly flat at the top and the bottom and bulge at the center. Now I am going to take about the topic the studying the earth. We will do studying the earth. The earth is huge. Earth जो है बहुत बड़ा है. To able to study the earth and its features more easily, people use globe and map. अर्थ जो है बहुत बड़ा है और हम अगर उसके बारे में पढ़ना चाहते थे और जानना चाहते थे तो इसके लिए उसके कुछ फीचर्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते थे, तब लोगों ने ग्लोब और मैप का यूज़ करना शुरू किया. उन्होंने क्या किया? ग्लोब और मैप का यूज़ शुरू किया. उन्होंने ग्लोब बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने मैप बनाया. अ ग्लोब इज़ अ मॉडल और अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है अर्थ के ही जैसा एक उसका मॉडल है जो कि अर्थ की रियलिटी को शो करता है. हमें एकदम सही अर्थ कैसा दिखता है, क्या है अर्थ पे, क्या क्या चीज़ें, सब कुछ हमें ईजिली उससे स्टडी करने को मिलती हैं. लाइक द अर्थ द ग्लोब टू इज राउंड. अर्थ की तरह ग्लोब भी देखो राउंड बनाया गया है. इट शोज ऑल द मेजर फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक द ओशन, कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज, जो हमें बहुत ही अच्छे से उसके सारे मेजर फीचर्स के बारे में बताता है, जैसे कि ओशंस के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में. याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस हैं, बताए थे ना. तो ये सब चीज़ें हमें ग्लोब पर स्टडी करने इजली. अर्थ पे तो हम जाएंगे नहीं, इसलिए लोगों ने क्या किया, ज्योग्राफिकल डिस्कवर करके इन्वेंशन किया गया था और उस तरह से ग्लोब बनाया गया, जो कि क्या है, अर्थ का एक मॉडल है जिसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ दैट ग्लोब वी कैन ईजली study all the features of the earth just like an ocean, continents and countries. A map is a drawing of the earth or part of the earth
मेड ऑन अ फ्लैट सरफेस। और एंड व्हाट इज मैप? मैप जो है एक ड्राइंग है जो एक फ्लैट सरफेस एक पेज पे या तो अर्थ का जितना पार्ट आपको चाहिए उतना ड्रॉ कर सकते हैं या कंप्लीट होल अर्थ का भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं और एक पेज पे हम फ्लैटली अच्छे से उसे देख सकते हैं, उसे स्टडी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट द अर्थ विद द हेल्प ऑफ मैप। It shows us the features of the earth in great detail than a globe does. मैप में जो है हमें ग्लोब की अपेक्षा और भी ज़्यादा डिटेल में अर्थ के फीचर्स के बारे में जानकारी मिलती है। वी कैन एबल टू स्टडी अबाउट द अर्थ फीचर्स विद द रेदर देन द ग्लोब बाय द मैप। ओके, see here, it's given the globe here. A globe allows us to see the earth the way it really is, without any change in the shapes of the continents and ocean. ग्लोब हमें एकदम एक्चुअली वैसे ही बताता है जैसे कि अर्थ है, बिना किसी चेंज के, बिना किसी उसके शेप के चेंज के, चाहे वो कॉन्टिनेंट्स हो या ओशन हो, एक्चुअली जैसे अर्थ पर है उसी तरह से हमें ग्लोब पर भी दिखाई देता है। हम ग्लोब से पे भी देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। दिस इज अ मैप ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ देखो मैप दिया है। मैप कैन शो मेनी स्मॉल डिटेल्स अनलाइक अ ग्लोब। ग्लोब की अपेक्षा अनलाइक ग्लोब हम मैप के ऊपर छोटी से छोटी हर एक डिटेल्स को देख सकते हैं जो हम ग्लोब पर नहीं देख पाते हैं। ओके, ग्लोब पे हम लोग मेजर पार्ट्स देखते हैं लेकिन मैप में हम लोग एक एक छोटे से छोटे पॉइंटेड चीज़ को भी मैप पे हम देख सकते हैं, उसे हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, directions and maps. Directions and maps. We use direction to find places on maps and in the real world. हम डायरेक्शन का यूज़ किस लिए करते हैं? जिससे कि हम मैप में कौन सी प्लेस कहाँ पर है हम डायरेक्शन की मदद से उसे सर्च कर सकते हैं। और रियल वर्ल्ड में भी हम कहीं जाते हैं तो हमें कहाँ जाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये इजली हमें पता चलता है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। कौन कौन से 4 मेन डायरेक्शंस है? वी हैव 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। how would you know the directions, that where is the east, where is the west, where is the north and where is the south? See, I will tell you. The sun rises in the east. Each and every one of हमें सबको पता है कि सन जो है ईस्ट में राइज करता है। ओके, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और सेट कहाँ होता है? वेस्ट में होता है। इफ वी स्टैंड इन फेसिंग राइजिंग द सन, अगर हम सन की तरफ अपना फेस करके खड़े होते हैं, इट मीन्स जिस तरफ हमने फेस किया है सन राइज हुआ है, डैट इज ईस्ट, तो हमारे बैक साइड में क्या हो गया? डैट इज वेस्ट। To our left hand, so to our left hand side lies the north and to our right side lies the south. अगर हम सन की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ आता है और हमारे राइट हैंड साइड में साउथ आता है। इस तरह से इजली हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। वी कैन इजली फाइंड द डायरेक्शंस, ओके, बाय फेसिंग द राइजिंग सन्स। On a map, the top shows the north while the bottom shows the south. मैप में क्या होता है? जो ऊपर का पार्ट होता है, टॉप पोर्शन होता है, उसको नॉर्थ होता है। मैप हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होता है और जो नीचे का पोर्शन होता है लास्ट बॉटम पार्ट, उसको हम साउथ करते हैं। उस हिसाब से हमें पता चलता है कि लेफ्ट ऑफ द मैप शोज द, तो इससे अगर हमारा टॉप जो है नॉर्थ है और बॉटम जो है साउथ है तो हमारे मैप का जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट है और राइट साइड जो है वो क्या है? हमारा ईस्ट है। लेफ्ट साइड जो है वेस्ट है और राइट साइड ईस्ट है। बाय दिस वे वी कैन इजली find the direction in real life also and on map also. So this much all of you clear? See, life skill, it is important to know how to read a map so you can find your way to any place you want. Try to make it a habit. अगर आपको चाहते हैं कि आप मैप को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी प्लेसेस को खुद मैप को रीड करें और उसे सर्च करके पढ़ें। सो आप, और ये हैबिट अगर आपकी बन जाएगी
तो आपको हर चीज़ लाइफ में बहुत ईजिली पता चल जाएगा. यू कैन एबल टू search any places with the help of the map. See a summary. The earth is a living planet. The presence of water, air and land on earth and the heat and light received from the sun make life possible on the earth. In short, I will tell you, अर्थ जो है एक लिविंग प्लेनेट है. उसके ऊपर वाटर, एयर, लैंड, हीट एंड लाइट जो हमें सन से मिलता है, इन लोगों की प्रेजेंस की वजह से ही हम उस पर अपने लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं. The surface of the earth consists of continents and oceans. We have 7 continents and 5 oceans. Okay, the 7 continents are what? Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America and South America. Asia is the largest and Australia is the smallest continent. We have 5 oceans: Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean and the Southern Ocean. The Arctic Ocean is the smallest one and the Pacific Ocean is the largest ocean. The layer of air that surrounds the earth is called the atmosphere. For long period, people think that earth is flat, but no. After a few times, voyages around the earth prove that the earth is round in shape. Now we know that the earth is slightly flat at the top and bottom and bulge at the center with the help of the satellite. A globe is a model of the earth and a map is a drawing of the earth and its features on a flat surface. There are 4 main directions. Which are they? North, south, east and west. We use these directions to find the places. By this chapter 2's explanation is over. So okay, bye, see you.